Welcome back, class 11th. Today we are going to start a new chapter, chapter 8, that is small business and enterprises. In this chapter, we will be discussing about entrepreneurship development, means ED, okay, this. Then its concept, characteristics and need we will be discussing. After that, process of ED. In this, Startup India scheme, ways to fund startup, and IPR, means intellectual property rights, and many more things we will be discussing about small scale enterprises. So let us begin our chapter. First of all, the concept entrepreneurship development. What is the meaning of this concept? This word has derived from the word entreprende, Latin word entreprende. Entreprende means to undertake a business enterprise. So it means a person who undertakes the risk of a new enterprise. Okay. Entrepreneurship development is the process in which entrepreneur undertakes the process of entrepreneurship which results in the enterprise. A person who set up his business unit. Then entrepreneurship, it refers to the process of setting up one's own business unit. वो जो पर्सन जो अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है उस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप. एंड रिजल्ट क्या होता है उसका? एंटरप्राइज के रूप में होता है. दैट आउटकम और ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. आउटकम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा? एक एंटरप्राइज, एक बिजनेस सेटअप हो जाएगा. ओके. सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बेसिकली ये तीनों चीज़ें ये कवर करता है. एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज. Once again, let us discuss its meaning. So entrepreneurship is a systematic, purposeful and creative activity performed by an entrepreneur. Entrepreneur means the person who undertakes the business activity. Okay. To translate business ideas into desired monetary results. उसके पास business ideas तो हैं, but वो उनको मॉनेटरी रिजल्ट में कब कन्वर्ट कर पाएगा? जबकि वो उसकी जो बिजनेस आइडियाज़ को जब वो रियलिटी में कन्वर्ट करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. Okay, so some characteristics are there and one mnemonic also there. SOILR, soil R. Okay, अब soil R क्या है? S for systematic activity, O for organization of production, then I for innovation and L for lawful and purposeful activity. Soil and then R, risk for risk taking. So soil. S, let us discuss all the mnemonics in detail. This entrepreneurship is a systematic activity. It is not a spontaneous activity. एक बार मतलब सिर्फ एक बार कर दी और ऑन द स्पॉट स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं है. ओके. इसमें क्या है? वन नीड्स स्पेशल नॉलेज टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर. ओके. डिसिप्लिन्ड मैनर में उस एक्टिविटी को पूरा करना होता है. स्पॉन्टेनियस नहीं है कि हाँ मतलब एक झटके में स्टार्ट कर दी. ये एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है. Then next characteristic is lawful and purposeful activity. इसमें लॉ को भी फॉलो करना ज़रूरी है और इसमें पर्पस भी होना चाहिए. ठीक है. पर्पस अगर केवल और केवल टू अर्न प्रॉफिट है, ठीक है, तो वो पर्पस फुलफिल हो पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. प्रॉफिट के साथ साथ जो सोसाइटी के जो बेनिफिट्स को, सोसाइटी के वेलफेयर को भी ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है. तो it is related to the establishment of a lawful and purposeful business. It aims at providing value. वैल्यू किसके रूप में? गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में. बिकॉज जब बायर्स कोई भी थिंग बाय करते हैं, सपोज इफ़ आई एम इन नीड ऑफ अ मोबाइल, देन द मनी विच आई हैव is not that much important rather than a mobile for me.
ठीक है, मेरे लिए अगर मुझे मोबाइल की नीड है तो मेरे लिए मोबाइल की वैल्यू उस मनी से ज़्यादा होगी, तो मैं उस मैन्युफैक्चरर को मैं वो उसके लिए वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, और मैन्युफैक्चरर मुझे वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है गुड्स के रूप में मोबाइल देकर। ओके, तो दोनों की नीड्स फुलफिल हो रही हैं। So it aims at providing value to the buyers, considering to the investors and profit to the entrepreneur. Because जब एंटरप्रेन्योर हमें गुड्स दे रहे हैं या हमें सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज जैसे मोबाइल में डेटा पैक, ओके डेटा पैक अगर हम रिचार्ज करवाते हैं तो हमें सर्विसेज मिल रही हैं, हमें वैल्यू, हमें गुड्स डायरेक्टली नहीं मिल रही है बट हमें सर्विसेज ज़रूर मिल रही है। सो इससे एंटरप्रेन्योर को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सो इट इज़ बेसिकली ए लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। दैन आई comes for innovation. Innovation means a new combination of different modes of production are created, like new technique, new products, new raw material and new marketing method. This is new. तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर ओके जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अलग हटकर सोचता है। ठीक है, वो चाहता है कि न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हो, डिफरेंट टेक्निक्स हो, डिफरेंट प्रोडक्ट हो, डिफरेंट रॉ मटेरियल हो, डिफरेंट मार्केटिंग मेथड्स हो, तो सब में वो इनोवेशन लाता है। देन ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। So under this new methods of production are adopted. Entrepreneurship में क्या होता है, प्रोडक्शन के न्यू मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं एंड अल्टीमेटली ये रिस्क टेकिंग है। ओके, रिस्क इज ऑन एवरी साइड, hence risk cannot be separated from entrepreneurship. So this soil R was the characteristic of entrepreneurship. Now what is the need of entrepreneurship? हमारी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप की क्या नीड है? नीड फॉर फॉलोइंग फैक्ट्स। फर्स्ट इज इट्स इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप से जो डेवलपमेंट प्रोसेस है कंट्री में वो इनिशिएट होती है, वो स्टार्ट होती है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर एंड मोर बिजनेस रिफ्लेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, किसी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अगर एस्टेब्लिश होते हैं तो उस कंट्री का डेवलपमेंट बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, पक्का होता है। देन नेक्स्ट इज सस्टेनिंग द डेवलपमेंट। रेट ऑफ डेवलपमेंट इज सस्टेन्ड एंड मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये ना केवल स्टार्ट ही नहीं होता, केवल इनिशिएट ही नहीं होता, ये मेंटेन रहता है, ये बना हुआ रहता है। ठीक है, अगर एंटरप्रेन्योरशिप है, सपोज़ अगर मान लीजिए आज से 10 सालों पहले कुछ लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस के थ्रू अब न्यू बिजनेसेस स्टार्ट किए, बट 10 सालों के बाद तक आज तक अगर कोई पर्सन रिस्क नहीं ले रहा है और वो अगर कोई न्यू एंटरप्राइज स्टार्ट नहीं कर रहा है तो फिर वहाँ पे उस कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो सस्टेन नहीं हो सकता, मीन्स वो मेंटेन नहीं रह सकता। ओके, इसके लिए कंटिन्यूसली न्यू बिजनेसेस सेटअप होना ज़रूरी है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। दिस एंटरप्रेन्योरशिप not only provides the scope for self-employment but also offers employment to large number of people. Last benefit is social benefit. By making optimized utilization of resources, they save scarce resources of society. So these were the importance or need of entrepreneurship. Now let us discuss the process of entrepreneurship डेवलपमेंट। अब इस प्रोसेस में क्या है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है। ओके, देन स्टार्टअप इंडिया जो एक्शन पॉइंट्स हैं ये क्या है, तो ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ।